हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन बोर्ड। फन किड्स इंडिया के विमान में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 1 और 2 से होते हुए हम आ पहुंचे हैं इंडियाज इमर्जिंग टैलेंट ग्रैंड फिनाले के एपिसोड 3 में। आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको हमारे एंकर्स के पास। रजनी भरारा, हिमांशु यादव, हमारे आज के पहले फाइनलिस्ट फॉर बेस्ट स्पीड क्यूबर व्यान मदान। The time is over. Delnaz, how did you like Vian's performance? He started off very well, and I think a few more minutes, and I think he's going to complete it. हमारी अगली फाइनलिस्ट फॉर बेस्ट स्पीड क्यूबर सानवी चड्डा। Gagan sir, how did you like her performance? She is amazing. मतलब मुझे तो अब तक भी नहीं हुआ। If you have seen my video, मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाया। Well done, शानवी, good job. हमारे अगले फाइनलिस्ट बेस्ट सिंगर किड्स जूनियर वीर मदान। Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. So no more counting dollars, we'll be counting stars. That's all I know. गगन सर, कैसा है परफॉर्मेंस लगा आपको? देखिए, इस उम्र में बच्चा ऐसे कर रहा है परफॉर्म, बहुत बड़ी बात है। इस समय तो हम लोगों को आई थिंक मुझे याद है कि क्रिकेट में बिजी रहते थे, क्रिकेट ही खेलते रहते थे। अब ये सिंगिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा गाया, बहुत वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। What about you, Delnaz? I think the platform that is there for these kids today is so good, and I feel that he's done such a nice job. Like sir said, that we never had all these things when we were kids, and right now there's so much of exposure for these children, and it's really nice the way he sang the whole song, and the last bit was too cute. Mujhe itna hi aata hai. So I think it's wonderful. यस मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और सच में मैं मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, एंड मैं देखते रहता हूँ हमेशा मैम इतना जॉयफुल रहती है ना। सच में आप लोग भी एक बार इंस्टा पे फॉलो करना मैम को, और देखना कि सच में आप इनकी स्टोरीज भी देख लेंगे ना, आपका दिन बन जाएगा सच में। सो यस मैम, मतलब आप इतना जॉली एंड आप इतना मतलब पॉजिटिव कैसे रहते हो? यू वांट टू से समथिंग अबाउट, लाइक हमको भी कुछ सीखने को मिले मैम।
To be very honest, I feel कि life is too short to have grudges and complaints and इतनी सारी चीजें हम लोग आजकल face कर रहे हैं, especially in these past 2 years, all that has happened. I think there's no time for negativity. There's no time that we should have for tears and tension and depression. We should just come out of all of it because we know that हमारे बस में कुछ नहीं है. बस आप पॉजिटिव रहिए, आप खुश रहिए, एंड ऑटोमेटिकली लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर यू. सो देयर इज नो नीड, बिकॉज टेंशन लेने से आपकी टेंशन कम नहीं होने वाली है. वी आर ऑल in the same boat. There is stress, there are ups and downs in life, but we need to overcome by just being positive. And the best thing that I do is मैं कभी किसी से कोई रिग्रेट नहीं रखती, कभी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखती. I am just like, I forgive and I forget very fast and I just go on with my life. It just has to move on. That's it. And just have a smile on your face, be positive, and just move on. That's it. हमारी स्पेशल जज डेलनाज ईरानी हमसे विदा लेती हैं. फन किड्स इंडिया आपका शुक्रिया अदा करता है. बाय डेलनाज. Thank you. I'm very, very grateful that I'm here at Fun Kids India and I love the talent. Gagan sir, you guys are doing a great job and the anchors were wonderful. Let me tell you, both of you all were superb and I had so much fun with all the kids out here. Good luck, God bless, and thank you for having me over. Thank you. दुखी मत होइए दोस्तों, क्योंकि अब आ रही है हमारी स्टार जज अदा खान, हमारे अगले फाइनलिस्ट फॉर बेस्ट सिंगर किड्स जूनियर. पर अब रोहित धोखा. करता हूँ रंग फाइट निंजा, मैं करता हूँ रंग ब्लू रॉड ब्लू निंजा. मैंने ड्रैगन को हराया था, मैं डायमंड की स्टोर से की, मैंने मेरी जीत आई. मैंने विजय के लीडर को हराया था, मैंने सारे ड्रैगन डरते हैं मुझसे, क्योंकि मैंने हर एक मॉब ड्रैगन को स्पॉन किया, उसे डिफीट किया. मैं उनको अच्छा करना रैंप पे अच्छा. थैंक यू. आनंद जी क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? परब से यही कहूँगी कि इस एज में इफ़ ही कैन डू इट सो वेल, आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा. एंड इतने अच्छे से ही इज़ कंपोज्ड एंड आई मीन आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज इट्स समथिंग व्हिच एवरीवन कैन नॉट डू इट. सो वेरी गुड परब. गगन सर. बिल्कुल सहमत हूँ आपसे. इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस, डांस मूव और ये जो म्यूजिक आपने बनाया है, इट्स रियली अमेजिंग. वेल डन, गुड जॉब. And I would like to tell that ये इनका खुद का कंपोज किया हुआ गाना है, ये कोई कॉपी या कहीं से भी उठाया हुआ गाना नहीं है. ये जो बीट बॉक्सिंग इन्होंने की है खुद की कंपोज की हुई है. हमारी अगली फाइनलिस्ट फंटास्टिक कैटेगरी किड्स सीनियर आराध्या घरा इंडियाज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं. आइए देखते हैं उनकी अमेजिंग स्टोरी. আরাধ্যা মাত্র 8 বছর 10 মাস বয়সে আবৃত্তি শিল্পকে যেভাবে বিশ্ব আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার জন্য আমি আবৃত্তির প্রশিক্ষক হিসাবে গর্ববোধ করি. Aradhya is our beloved student. We would like to thank Fun Kids India for taking the great initiative by bringing various
talents from various states of India into light even in this dreadful pandemic situation. তো আমাদের স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক দিকটাতেও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। আরাধ্যার জন্য রইল আমাদের আশীর্বাদ ও অনেক অনেক শুভেচ্ছা। খুব ছোট বয়স থেকে আরাধ্যা আবৃত্তির অনুরাগী। মাত্র 4 বছর যখন বয়স তখন থেকেই ও আবৃত্তির জন্য বিভিন্ন স্টেজ থেকে পুরস্কার পেয়েছে এবং ওকে ঘিরে আমার যে স্বপ্ন তৈরি হয়েছে সেই স্বপ্নকে ও ধীরে ধীরে বাস্তবতার দিকেও নিয়ে যাচ্ছে। আরাধ্যা ঘরার মধ্যে আমি অনেক কিছু গুণ দেখতে পেয়েছি, যেমন প্রথমত আবৃত্তি চর্চা করতে গেলে যে বিশেষ গুণগুলো দরকার তার মধ্যে রয়েছে, এক হচ্ছে আন্তরিকভাবে ও আবৃত্তিটাকে ভালোবাসে, এছাড়া ওর সঠিক উচ্চারণ ক্ষমতা যেটা আমাকে মুগ্ধ করেছে। মাকে আমার পড়ে না মনে, শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে একটা কিশোর গুনগুনিয়ে কানে আমার বাজে, মায়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে, মা বুঝি গান গাইতো আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে। আরাধ্যা ঘোড়া আমাদেরই পাড়ারই মেয়ে, প্রতিবেশী হিসেবে ওকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ছোটবেলা থেকেই চিনি। ওর মধ্যে প্রচুর প্রতিভা বিকাশ আমরা দেখেছি এবং যত বড় হচ্ছে ও কিন্তু সেই বিকাশ কিন্তু এই থেকেই প্রস্ফুটিত করছে। मुझे पोएट्री बहुत पसंद है। मैं जब रिसाइटेशन करती हूँ मेरे दोस्त बहुत खुश होते हैं। 2018 মার্চ মাসে আরাধ্যা ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি হয়েছিল যে আরাধ্যাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে কিনা একটা বড় প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে গেছিলাম। আমি যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম আমাকে তখন ও বলল, বাবা আমাকে একটা কবিতার বই নিয়ে এসো আমার জন্য। তো সেদিন আমি ওর কবিতা এবং আবৃত্তির প্রতি যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসায় আমার চোখে জল এসে গেছে। আরাধ্যার এই সাফল্যে আমি ভীষণভাবে খুশি। আমি চাই ও আরো বড় হোক, ও মানুষ হোক, আমি এই আশীর্বাদই করি। थैंक्स फन किड्स इंडिया, इंडियाज इमर्जिंग टैलेंट दे हुनर को पहचान 2020 अवार्ड्स। I love Fun Kids India. বিচিত্র স্বাদ। আমি যখন পাঠশালাতে যাই আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে 10টা বেলায় রোজ দেখতে পাই ফেরিওয়ালা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে। চুরি যাই সে হাঁকে, চিনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে। যায় সে চলে যে পথে তার খুশি, যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে। 10টা বাজে, 10:30 বাজে, নাই কো তারা, হয় বাবা আছে দেরি। ইচ্ছে করে সিলেট ফেলে দিয়ে অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি। আমি যখন হাতে মেখে কালি ঘরে ফিরি 4:30 বাজে। কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালি, বাবুদের ওই ফুল বাগানের মাঝে। কেউ তো তারে মানা নাহি করে, কোদাল পাছে পড়ে পায়ের পরে। গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো, কেউ তো এসে বকে না তার কাজে। মা তো তারে পরায় না সাপ জামা, ধুয়ে দিতে চায় না ধুলো বালি। ইচ্ছে করে আমি হতেন যদি বাবুদের ওই ফুল বাগানের মালি। একটু বেশি রাত না হতে হতে মা আমারে ঘুম পড়াতে চায়, জানলা দিয়ে
দেখিছে পথে পাগড়ি পরে পাহারা ওলা যায় আধার গলি লোক বেশি না চলে গ্যাসের আলো মিটমিটিয়ে জ্বলে লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরজায় রাত হয়ে যায় 10টা 11টা কেউ তো কিছু বলে না তার লাগি ইচ্ছে করে পাহারাওলা হয়ে গলির ধারে আপন মনে জাগি ধন্যবাদ इतनी सी उम्र में ऐसा कॉन्फिडेंस कमाल है. गुड गोइंग आराध्या. So Aradhya is very talented. I think she holds India's books of record in writing. Yeah, she's very talented. She want to participate. So we say कि हम तो हिंदी में कोई नहीं गा सकते आप क्योंकि हिंदी की कैटेगरी आप आ सकते हो लेकिन नहीं. So we put into fantastic category. So well done Aradhya, good job. बहुत बढ़िया. मजा. क्या बात है अदा जी, आप क्या कहेंगी इस परफॉर्मेंस के बारे में? She was expressing also really well. जो वो कह रही थी, मुझे the language maybe I don't understand, but her expressions said it all, and that's how I understood कि वो कब when she's becoming sad and when she's requesting and when she's saying. So I think for the acting, obviously full marks because जिसको language आती नहीं है, if I can understand, then really good, very good Aradhya. What a performance, आराध्या के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. Come on everyone. Okay. बढ़ते हैं हमारे अगले फाइनलिस्ट की ओर. फंटास्टिक कैटेगरी किड सीनियर आरुष टंडन. Okay, so it's called I've got 2 stories. Just say of the first paragraph of it. So there's You can just tell them. You don't have to. 2 stories. You can tell a little bit about them. Okay, so the runaway sofa is about a man and a sofa who did not cooperate and always fought on the sofa and the sofa would bite him because he didn't like it. हमारे अगले फाइनलिस्ट फॉर बेस्ट एक्टर कृष मखीजा. वही कहानी फिर एक बार मजनू ने दिए कपड़े फाड़ तमाशा बीच बाजार रुककर सोचा ऐसा क्यों ऐसा वैसा जैसा तैसा पैसा हाँ पैसा अगर पैसा ना होता तो कैसा होता सोचो आप लोग भी सोचो सब लोग सोचो अरे अभी तक सोचो अरे छोड़ो बोरिंग बातें सारी मस्त रहो जम के खाओ ले लो पंगे चलो सूली पाल लो कपड़े तोड़ दो कंगन तोड़ दो गोली सभी लोगों का दिल बहलाओ शोर मचाओ मारो डुमका मालिक मैं तो आपको वफादार ना करूं आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा फिर आऊंगा आपके आंगन फिर वही करूंगा अच्छा वही करोगे क्या कर लोगे तुम मालिक आपका हुक्म सलाह के ऊपर जो बोलोगे वो कर लूंगा अगर आप मेरे को नौकरी से निकालना चाहते हो तो मैं आपका हुक्म सलाह के ऊपर रखूंगा और निकल जाऊंगा. Give it up for Krish Makhija, everyone. सच में क्रिस के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. क्या बात है. थैंक यू सो मच. ओके तो चलते हैं हम जजेस के पास डायरेक्ट. गगन सर क्या कहना चाहेंगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में? जयपुर से हूँ मैं. So this guy is very talented. मैं आपका डायलॉग रिपीट कर रहा था. आपने बोला था ना आपका डायलॉग रिपीट कर रहा था. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया आपने क्रिश. वेरी गुड जॉब. Thank you, sir. हाँ मेरे लिए आई थिंक अदा इज बेटर पर्सन टू जज इन एक्टिंग. सो अदा आप प्लीज. जी अदा मैम क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? क्रिश मुझे अच्छा लगा, आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा और ये आपने खुद लिखा है ये जो आपने इनैक्ट किया या कहीं खुद से बनाया है. वेरी नाइस यार, सीरियसली वेरी Thank you, ma'am. कॉन्फिडेंस भी है, एक्टिंग भी अच्छा कर रहे हो. सो आई रियली लव्ड इट. करण जी वाह छोटे उस्ताद, तुम्हारे स्वैग ने सबको हिला दिया. चलते हैं अब अपने अगले फाइनलिस्ट के पास फॉर बेस्ट एक्टर तेजस्वी शर्मा. स्कूल सरकारी स्कूल अंग्रेजी स्कूल के बच्चे टिप टॉप और सरकारी स्कूल के बच्चे ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मेरे पापा मम्मी कहते हैं.
मैं तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता हूँ और लाखों रुपए पापा के जैसे डीले कराता हूँ। हाँ, हमारी काम वाली बाई का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है। वो बहुत मेहनत भी करता है और मेरे घर पे मेरे पापा मम्मी मेहनत करते हैं। पापा रात भर बैठ के मेरा फॉर्म लाते हैं, मम्मी जूस और बादाम खिलाती है और वो सारा जूस और बादाम मेरे शोर मचाने में बच जाता है। ये हाँ, पर मेरी काम वाली बाई अपने लड़के को सूखी रोटी खिलाती है, वो फिर भी फर्स्ट आता है। अब तो बड़ा हो गया है, इंजीनियर बन गया है और मैं अभी भी अपने पापा की जेब भी ढीली करा रहा हूँ। हाँ, पर मेरी एक प्रगति जरूर हुई है, मेरी 2-4 गर्लफ्रेंड बन गई है। इसलिए भैया, किसी ने सही कहा है, इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, किसी सरकारी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के नहीं। स्कूल 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 बहुत हो गई अंग्रेजी और सरकारी स्कूल की बातें। अब उन बच्चों पे गौर डालते हैं जो स्कूल तो जाते हैं पर पढ़ने के लिए नहीं, मजे करने के लिए, और उन्हें इंग्लिश का ई भी नहीं आता। विद्या चाची, आप जानती हैं हम अपने स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, हमारे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल कहते हैं। और बात रही अंग्रेजी की, तो कभी कभी हम 1-2 स्पेलिंग गुरुजी को बता ही देते हैं। और हम अपनी क्लास के मॉनिटर भी हैं। क्लास के तो छोड़िए, समझिए पूरे स्कूल के मॉनिटर हैं। अगर हम एक दिन स्कूल ना जाए ना तो सारा स्कूल परेशान हो जाता है कि गप्पू नहीं आया। सारे बच्चे हमसे नीचे ही रहते हैं। चलो हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं अंग्रेजी की। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, व्हाट वंडर व्हाट इज योर। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या बात है। तो अब हम अपने जजेस पे आते हैं। अदा, हाउ डिड यू लाइक तेजस्वी's परफॉर्मेंस? तेजस्वी, मैं तो ये कहूँगी आपने इतने अच्छे से परफॉर्म किया, प्लस आपकी परफॉर्मेंस में सीख भी थी। एक ये खुद लिखा है आपने? यस मैम। वेरी गुड यार, बिकॉज जो आपने सीख दी है सबको कि अमीर गरीब नहीं होता, इंसान मेहनत करने से ही आगे बढ़ता है। वेरी ब्यूटीफुल, आपने लिखा भी अच्छा है, आपने परफॉर्म भी अच्छा किया और फुल थैंक यू मैम के साथ आपने किया है। आई लव्ड इट तेजस्वी। मैम, मुझे एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो ना। आप मेरे साथ डांस करोगे एक बार? प्लीज। अदा, इतने टैलेंटेड बच्चे की रिक्वेस्ट। एक बार अदा मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन, तालियां सच में तालियां होनी चाहिए एवरीवन। अदा खान के साथ डांस करने का मौका नसीब वालों को ही मिलता है। ओए तेजस्वी, आ गई हमारी अगली फाइनलिस्ट फॉर बेस्ट एक्टर, कनिक्षा नगम। प्रेसिडेंट कमाटीपुरम, तुमने अपने छोरा रे श्रीमती किसने मदाना है? जमीन बे बेटी बहुत अच्छी लगती है, तो अडल डाल दे खुश तेरे खुशी तब करी। हमारी अगली फाइनलिस्ट फॉर बेस्ट एक्टर, आश्रिया गुप्ता। Good afternoon everyone, I am Ashra Gupta and today I am going to perform a dual act in which one side I am coronavirus and on the other side I am a common man. Ha ha ha! गजब! कैसा सन्नाटा बिसरा हुआ है, चारों ओर लाशें ही लाशें बिखरी हुई है। लगता है मेरा जादू आखिर चल ही गया। हा हा हा! कोरोना खुश हुआ, बड़ा साइंटिस्ट बना फिरता था मनुष्य, चांद पर पहुंच गया और मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे सामने तो बौना ही साबित हुआ ना। हा हा हा! कोरोना खुश हुआ। अब वो दिन दूर नहीं जब सारी धरती पर मेरा ही राज होगा और इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे हिंदुस्तान की जनता को वश में करना होगा, उनके जीवन को नर्क में बनाना होगा। चलो भारत चलते हैं। ओए कोरोना, तू यहाँ
डिसीज है। अरे ये क्या, ये मेरे साथियों को क्या हुआ? अरे अब तो हॉस्पिटल्स में भरते जा रही है, ये कोरोना तो कोड की तरह फैलता ही जा रहा है। अरे अब तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स और वेंटिलेटर्स की भी कमी होती जा रही है। हे भगवान, कितने लोग मर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, कोरोना खुश हुआ, देखा मेरा कमाल। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देख मैं क्या क्या करता हूँ। बस कोरोना बस, अब मैंने सबक सीख लिया है, अब हमें संयम बनाना होगा। घमंड तो रावण का भी झूठा था, हमें मिलकर तुझे हराना है। हमें अपनी संस्कृति को एक बार फिर से अपनाना है। हमें हाथ नहीं मिलाने बल्कि हाथ जोड़कर मुस्कुराना है। हमें मास्क और सैनिटाइजर को प्रयोग में लाना है। वैक्सीनेशन और 2 गज की दूरी से हमें कोरोना को हराना है। हम भारतीय हैं, एक बार फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से मजबूत बन जाएंगे। दोस्तों, वो वक्त एक बार फिर से आएगा, लेकिन तब तक हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें हारना नहीं है, क्योंकि मुश्किलें तो हर कदम पे आएगी, लेकिन हमें उनका डट कर सामना करना है, क्योंकि हम भारतीय ये मानते हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थैंक यू एंड स्टे सेफ। What a performance! What a performance! Now we would like to move to the judges. Ada, how did you like her performance? Well, performance ही नहीं था, बल्कि you know, you've given us a message, a very very strong message. We all know what happened in our country, you know, because जैसे आपने कहा, we all were very overconfident. लेकिन फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं. So thank you for this message, and it obviously creates more awareness, and I'm so glad that, you know, this little kids are giving such strong messages. I mean, इसके पहले भी जो आए थे और अब भी. So I'm very very happy that they are so socially aware. At this age probably I wasn't, but you know, I'm very proud of you and really good job. Okay, so गगन सर क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? I think I'll go with what Ada has said, because acting तो मैंने इनको देखता हूँ कई बार, या उनको देखता हूँ, तो I agree she is very talented. काफ़ी अच्छी इनकी एक्ट जो पहले भी की थी स्टेज ग्रुप स्टेज लेवल पे, वो भी अच्छी की थी। ये तो खैर मैसेज के साथ है, बहुत बढ़िया। वेल डन, बेटा। हमारी अगली फाइनलिस्ट किड सीनियर ओरेटर माही कोठारी। Heal the world, make it a better place for me and you and the entire human race. Good afternoon all. I, Mahi Kothari, feel honored to present some views on today's topic, that is, importance of responsibility to keep Earth safe. As we all know, we all are human beings living on this planet, and this planet is our Mother Earth. So, it's our responsibility to keep our Mother Earth safe, and our future generation get a better and safe environment. It is not just a responsibility, it is also our privilege to us. We can do various things, such as we can save trees, natural resource, natural vegetation, water, electricity, and etc. We can stop global warming and have to measure control environment pollution. Simple things we can do to protect and help our earth. We can reduce, reuse and recycle, conserve water, plant a tree, drive less and walk more. Don't send any chemicals in waterways. If we will start following this, our environment will be clean and clear, and future generation will get safe and nice environment, and our earth will be greener and livelier. Thank you. सच में थैंक यू सो मच। यस गगन सर, क्या कहना चाहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? अब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था अर्थ के बारे में, वेरी गुड। और ऑफ कोर्स यू नो इतना अच्छा आपने किया है ये सब।
I'm really impressed. बहुत बढ़िया. Well done, Mahi. You did a good job. Well done. हमारी अगली फाइनलिस्ट किड सीनियर ओरेटर रेवा भसीन. I'm Reva Bhasin and I'm participating in the Best Orator category. My topic for today is time and tide don't wait for anybody. The fast-paced world that we are living today, people have everything they want except time. If we fail to grab a beautiful opportunity hoping for times to favor us, it's never really going to take our way. Well, life will be meaningful if you make the best use of time. Time and tide do not care about your sentiments. They're immune to your loss and gain. This teaches us punctuality. We should complete our task within the due frame of time. Talking about past, present, and future. What are they? You wink an eye, the moment is past. Future too is not revealed to us. We never know what's gonna happen. It's only in the present that the essence of life is contained. So live life as it unfolds itself before us. That is in the form of present. What do you think? Thank you. So now moving to the judges. Judges, how did you like Reva's performance? Ada? Reva, very very good. Good thought. And बहुत पते की बात कही आपने. I'm very impressed, yeah. ओके गगन सर क्या कहना चाहेंगे? अब कहना चाहूँगा ऑफ कोर्स आई नो रेवा बहुत ही बेहतरीन ओरेटर हैं और आज जो परफॉर्मेंस दिया है जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है. सो मेरे हिसाब से तो यू आर द विनर बट आई कांट बी द विनर कैन टेल यू ओवर बट यू डिड वेरी वेल. गुड जॉब. थैंक यू. हमारी अगली फाइनलिस्ट ने अपने स्टाइल के साथ हीरोइंस को भी पीछे छोड़ दिया है. किड सीनियर डांसर रतिका भट्टा. रतिका के पावर पैक परफॉर्मेंस के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है. क्या शैरन रतिका को टक्कर दे पाएगी? जानने के लिए देखिए इंडियाज इमर्जिंग टैलेंट ग्रैंड फिनाले का 4th एपिसोड. आशा करते हैं आपकी यात्रा मजेदार थी. मिलते हैं 14 अगस्त की शाम 5 बजे. सी यू गाइस.